All right. So let's talk about the next topic that has to do with word choices. Yesterday we talked about what? Can you recall? We were talking about certain words that could create confusion in our mind when we are speaking them or writing them. Because sometimes their sound is similar, sometimes their spelling is similar, sometimes their meaning is similar, but it only depends on the situation and the placement in a sentence or in a paragraph. Now this particular chapter explains two sources for finding out the meanings. Now we need to know how to look for meanings. Can you tell me any one way where you can actually find out the meaning of a word? How can you do that? You know the context and you Contextual meaning can be inferred. You can actually infer it. कि आप एक पूरा sentence पढ़े, sentence में आगे क्या text है, पीछे क्या text है, उन दोनों को मिला के क्या meaning बनता है. That is a technique in reading which is called inferencing. ठीक है? वो आप infer कर सकते हैं. उसके अलावा आप meaning कहाँ देख सकते हैं? Dictionary, of course. Dictionary can provide you a number of meanings that are there. Sometimes a word could be a noun and a verb at the same time, depending on its place within the sentence. The dictionary would tell you all the usages and all the possible meanings of a particular word. And have you ever looked at the dictionary, a physical one? Physical dictionary देखी है अभी? देखी आती है आपको? Yes. सबको आती है? Yes. That's great. So आपने ये भी note किया होगा कि some of the dictionaries they have another separate section of synonyms जिसको thesaurus कहते हैं. Yes. Do you understand the word thesaurus? Yes. Thesaurus is like जहाँ पर it's a collection of material, all information. और dictionary के word में thesaurus इसी को कहते हैं जहाँ पर references मिले. For example, there is a word जो आप लोग अपने computers में use भी करते होंगे, syntax. Syntax. ठीक है? Syntax या syntax जो भी आप उसे कहते हैं. आपके mind में इसका क्या मतलब है? Computers में ये word आपने देखा है? What does it mean? अच्छा यहाँ लिखा होता है? Error. It's an error. It's computer language, and the errors found in it will be syntactic errors. लेकिन अगर आप linguistics में यानी languages में आ जाए, it is simply the study of language structure. Computers में भी language की ही analysis है, लेकिन उसकी language आपको पता है Java होती है, C++, Python वो different होती है, लेकिन English या कोई और language लेके चले तो उसका syntax different होता है. अब same word है, same pronunciation है, लेकिन उसका context change होते ही, field change होते ही वो कुछ और entail करने लग पड़ता है. So जो dictionary है, thesaurus है, वो आपको बताएगा दो sections बनाएगा. पहले section में लिखेगा linguistics के perspective से इसका क्या meaning है. फिर एक दूसरा section बनेगा जहाँ पर वो आपको बताएगा कि ये computers में इसका क्या मतलब है. And then, do you know this word? This is very common. Independent. Yes. What does it mean? Not dependent. Akela, alone. Khud mukhtar, responsible. You know there are more than 7 meanings of independent. Yes. Can you pinpoint the 7 meanings? चलिए हम यहाँ पर नोट करते हैं. पहला मीनिंग आपने बोला independent, who's not dependent on anybody, right? Yes. किसी ने कहा alone और empowered, very good. Autonomous. You see, autonomous, empowered, not dependent, they are the same. वो सिर्फ अंग्रेजी में उसके और बातें हैं. मीनिंग की बात करें. इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं आप? Yes. That has another kind of meaning to it. एक नया फ्लेयर है जिसको आप आज़ादी कहते हैं. Yes. खुद मुख्तारी और आज़ादी में फ़र्क है, लेकिन दोनों के लिए जी यस, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये तो फ्रीडम डे तो नहीं मनाते ना, हम इंडिपेंडेंस डे ही मनाते हैं. तो वहाँ से भी आपको एक मीनिंग आता है. तो जो डिक्शनरी है इट विल कीप टेलिंग यू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर इट, जिसमें आपके पास सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. सिनोनिम्स कैन हेल्प यू समटाइम्स इफ आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि समझ नहीं आती होती. आई लुक फॉर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दे हेल्प मी अंडरस्टैंड. Do you understand what are synonyms and antonyms? What are those? जी बिल्कुल. Synonyms are the near meanings or similar or some
Now let's read that what does it mean by word choices? Using the right words. Why do we need to use the right words when we are writing or speaking? To get through the audiences in a right manner. Sometimes it so happens that we say something to somebody and they are offended and you tell them, I'm sorry, I didn't mean it like that. Yes. The reason is the way we say it. Sometimes it's our tone and sometimes the word choices. Sometimes the teacher wants you to improve, but the way they give you the feedback is so cruel or bashful that you feel like you don't have to put an effort because the teacher is like that. So जब encourage करना होता है, when we need to encourage somebody, we need to use polite language. If not positive, but इस तरह की language के बच्चा encourage हो, तो वहाँ पे word choices are very much important. Same goes for you. Let's say you missed your quiz and you want another chance. अब आप यहाँ आके कहें, मुझे तो पता ही नहीं था टेस्ट था, मुझे तो पता नहीं था, मैडम आपने अनाउंस ही नहीं किया, आपने ही नहीं बताया. तो that is a wrong way to approach. Yes. What you could have done is, I'm sorry, I knew it is my fault, but could you please find a way for us to work together so that I can actually attempt this chance and I don't want to miss it? That's a better way. देखिए मीनिंग एक ही है, मकसद यही है कि आपको वो क्विज देना है, लेकिन अगर आप वर्ड चॉइसेस करेक्टली यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करेंगे, तो इट विल गेट यू मोर benefit as compared to being very shrewd or dry. होते it's normal, मैं भी हो जाती हूँ. Now understand the importance of choosing words carefully, the discussion we just had. In conversation, you show much of your meaning through facial expressions. Do we? Yes. 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 Sometimes, some of the people, they are very nice, but their facial expressions are not in their hands. Yes. वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें पता नहीं लगता कि वो दे आर बीइंग नाइस और दे आर बीइंग रूड और सार्कास्टिक. समटाइम्स ऐसा होता है आपके साथ. आप में से कोई ऐसा है जिससे आसानी से लोग गलत समझ लेते हैं बिकॉज ऑफ इट? Yes. Every time. Every time. आपके साथ ऐसे ही होता है? ठीक है. So expressions are equally important as word choices. ठीक है. Tone of voice and gestures. In writing, you have only the words on the page. Spoken का और मतलब है कि जब बोलते हैं तो facial expression, body language, hand movement, चलना, देखना, ना देखना, everything counts. But writing में तो एक piece of paper है और उस पे words हैं. ठीक है. To make your point, so you must choose them carefully. If you use vague or inappropriate words, your readers may not understand you. Carefully chosen words tell your readers exactly what you mean. 2 resources will help you find the best words for your meaning: a dictionary and a thesaurus. Now there is a tip over there for fun podcasts with tips on grammar and uses. Check out Grammar Girls Quick and Dirty Tips for better writing at this link. You can utilize it. आप पॉडकास्ट सुनते हैं, किसी ने कभी कोई पॉडकास्ट सुनी है? Yes. किस बारे में सुनी है? Random. Alright. Current issues. Okay, वो पॉडकास्ट अच्छा ये यूट्यूबर है. ठीक है. यूट्यूबर्स ने भी एक नया मिशन स्टार्ट किया है दैट पॉडकास्ट. एक तो ब्लॉगिंग है वो करते हैं, इसके साथ पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दी है. Do they generate revenue out of What does he talk about? Talks about nationality, He's a very short. some may say concept nationality, some may say basic. Can I end you? Okay, I'll And you take a listen. अच्छा आपको पता है एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्राइब्ड. हाँ, उस पे पॉडकास्ट पड़े होते हैं. इट्स नॉट फ्री. ठीक है, थोड़े से कुछ चार्जेस हैं. अगर आप इंग्लिश से भागते हैं तो उर्दू के पॉडकास्ट हैं और बहुत अच्छे. Yes. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेके सुन सकते हैं. पॉडकास्ट सुनने से क्या फ़ायदा होगा? In Urdu or English, in both cases, you are going to actually evolve as a person. You will have more knowledge,
and you will have more word choices to begin with. Sometimes we say that, ma'am, I know what I want to say, but I don't have the expression to express it. The reason that our horizons are very limited, that we would only like to listen to certain kind of things and we don't want to go beyond it. Once we take that step, we go beyond it, we get more information. Sometimes I read some random stuff which is not related to me, not to my teaching, not to my study, but it helps me anyway. For example, nowadays I watch war and crimes kind of a series all the time, so the vocabulary items that I get out of those shows, I didn't know them before. I'm doing PhD, लेकिन मुझे वो वर्ड्स नहीं पता थे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे से रिलेटेड नहीं थे. अब मुझे बहुत कुछ ऐसा पता है जो मुझे यूजुअली नहीं पता होना चाहिए. अगर आप टाइम वेस्ट करना ही है तो ऐसी चीज़ों पे करें. अगर आपने किसी फेमिनिस्ट को भी सुनना है, मेरे शोविनिस्ट को भी सुनना है, ज़रूर सुने. आइडियोलॉजी मत फॉलो करें, वर्ड चॉइसेस को ज़रूर दें. आइडियोलॉजीज तभी फॉलो करें व्हेन दे आर फेयर. ठीक है, बाकी वो आपकी चॉइस है. यहाँ तक बात समझ आई. Now moving forward to one of the sources is dictionary. You need a dictionary. A good paperback dictionary does not cost much, and a number of good dictionaries are now available free online. आपके पास कौन सी डिक्शनरी है फ़ोन में? ऑक्सफोर्ड, वेबस्टर. ये देखिए आपको यहाँ ये देखिए ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी इज अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, अब कोई मुझे वर्ड बताएं, कोई मुश्किल वर्ड बताएं जो आपको लगता है आपको नहीं आता. एंथुजियाज्म ये मुश्किल है. ओके, लेट्स लेट इट ओपन. हम उसको सर्च करते हैं. मैं बताती हूँ, इसे खुल ले दो. पहले सिंटेक्स देखें जो मैंने आपसे शेयर किया, वेदर दिस डिक्शनरी टेल्स यू द सेम थिंग और नॉट. सो ऑनलाइन आप इस तरह की डिक्शनरीज को एक्सेस कर सकते हैं. देखिए मैंने आपको बताया टॉपिक्स, उन्होंने वहाँ पर हाईलाइट कर दिया. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स विद इन लैंग्वेज. ठीक है, उसके बाद वो आपको उसको मीनिंग बता रहे हैं. यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर वो कंप्यूटिंग में चले गए, यहाँ पर वो लैंग्वेज में चले गए. उन्होंने डिफरेंट उसकी दो कैटेगराइजेशंस बनाकर आपको दिया. इसके बाद अगर आप चाहें तो आप थिसॉरस भी लिख सकते हैं. देयर इज अ वेबसाइट thesaurus.com और org, आप चेक कर सकते हैं. वहाँ पर आपको सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट दी जाती है. जब आप गूगल, जैसे आपने कहा गूगल यूज़ करते हैं, आप गूगल में लिखते हैं सिंटेक्स मीन्स, तो वो भी आपको इसी तरह से मीनिंग देता है. डिफरेंस नहीं होता उसमें खास, क्योंकि वो भी इन्हीं सर्च इंजन्स को यूटिलाइज करता है. ये देखें, देखिए दोनों वही मीनिंग दिए हुए. कंप्यूटर लैंग्वेज एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज. तो इस तरह से वो आपको दो कैटेगराइजेशंस देता है. उसके बाद जो आपका पॉइंट है इधर, डिक्शनरी गिव्स यू ऑल काइंड्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, स्पेलिंग, डिविजन ऑफ द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ यूज. सिलेबल्स पता है आपको क्या होते हैं? व्हाट आर दोस? सिलेबल्स नहीं, सिलेबस नहीं, सिलेबल्स. ये लिखा हुआ है. ये डू यू नो दिस वर्ड? किसी भी वर्ड के वर्ड के साउंड होते हैं. जैसे एक बड़ा कॉमन वर्ड है, इसमें कितने साउंड हैं? Now these are syllables. ठीक है, कि जहाँ जहाँ आपने पॉजेज लेने. अब एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. आपके पास 3 syllables हैं यहाँ पे. एंड syllable का जो स्ट्रेस है वो, जैसे कि कह रहे हैं पोइट्री में उसका डिफरेंट यूसेज होता है, वो बहुत डिटेल होता है कि अगर
एक पोएट किसी सर्टेन सिलेबस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है तो वो नाउन से वर्ब पे बन जाता है, वर्ब से नाउन भी बन जाता है। जैसे रिकॉर्ड एंड रेकॉर्ड, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, कंडक्ट एंड कंडक्ट दोनों डिफरेंट हैं। तो वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिक्शनरी में मिलती है, जिसमें सिलेबल डिवीजन भी होती है, प्रोनाउंसिएशन भी होती है, प्रोनाउंसिएशन को रीड करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके सिंबल्स होते हैं, जैसे एक साउंड होता है, साउंड जैसे ये है ना, एक सिलेबल कैट, कैट राइट, इसके जो सिलेबल्स हैं वो ये है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज में हर साउंड की ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल है। अच्छा ये क्या साउंड है? क्या साउंड है? चेयर, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे है, ठीक है, वो इस तरह से इसको लिखते हैं। बताने का मकसद ये है कि ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ी जाती है। अगर आपके पास बोलने वाली डिक्शनरी नहीं है तो आप पढ़ के भी उसकी प्रोनाउंसिएशन डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पर होते हैं कि नाउन है, वर्ब है, किस क्लास से किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स भी दिए जाते हैं, स्पेशली उर्दू की डिक्शनरीज को भी आपने खोल के देखी हो। तो जैसे होता है ना, प्लूरल और सिंगुलर के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट इन पास्ट एंड फ्यूचर वाली टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कल भी आप कह रहे थे कि सेंटेंस बनाते हुए एक्सेप्टेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेड दोनों डिफरेंट वर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो सारा कुछ आपको ये डिक्शनरी बताती है। नीचे यही एग्जाम्पल दी हुई है, इसको देखें। स्पेलिंग एंड एंड ऑफ लाइन डिवीजन, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट। अब यही उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन दी हुई है, कॉन्क्रीट, ये ई का साउंड देती है, कॉन्क्रीट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फिर ये एडजेक्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, ये तीन आपको दिया हुआ है। उसके बाद अदर फॉर्म्स क्रिएटेड, ठीक है, उन्होंने इसको साथ और फॉर्म दिया हुआ है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी दी होती है, कुछ डिक्शनरीज में सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। अब आपके पास अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो यही हो सकता है कि आपको एक वर्ड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताएं कि कौन से वर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इसके क्या पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं और इसके एग्जाम्पल, और एज सिंपल एज कि आपको सेंटेंस बनाने के लिए भी दिया जाए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? Thesaurus पे चलते हैं। A thesaurus gives synonyms, words that have the same meaning for the word you look up. It comes in inexpensive and even electronic editions. Use a thesaurus when you cannot find the right word for what you mean. Once I was given an assignment to write a piece of poetry and I had to rhyme. I had the idea in my mind, but मुझे वो राइम करने वाले वर्ड्स नहीं आ रहे थे माइंड में, बिल्कुल भी वो वर्ड्स रेलेवेंट वर्ड्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने थिसॉरस में लिखा कि मुझे इस मीनिंग का जो मीनिंग में डिपिक्ट करना चाहती थी चाहिए। तो जब उसने मुझे सिनोनिम्स दिए या एंटोनिम्स दिए, इट हेल्प मी कम अप विद दोज रिदमिक पैटर्न्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन पोएट्री, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको हेल्प कर सकते हैं। मॉडर्न पोएट्री में जो वोकैबुलरी बोलते हैं वो सिलेबस को ब्रेक करके राइम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है। राइम ऑरेंज, यू कांट राइम इन एनीथिंग, बट इफ यू लाइक एक रैपर है मतलब वो करता है, वो सिलेबस तोड़ता है, वर्ड्स के टोन चेंज करता है, ऑरेंज, लोअर हिंज, बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिमिलरली समटाइम्स हमें लगता है कि ये वर्ड इस वर्ड से एक्चुअली राइम नहीं करता, वो रीज़न ये है कि हमें उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होती। जैसे ये जो लफ्ज़ है, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? इट्स नॉट प्रीफेस, इट्स प्रेफेस। अब जब हमें पता है कि ये प्रीफेस है, तो जब मैं राइम लिखूंगी तो मैंने उसको तो प्री वाले में लिखा है, जबकि वो है ही नहीं। हाँ, उर्दू में अगर आपने राइमिंग लेनी है तो फिर आपको उर्दू में सोचना पड़ेगा, उनके ग्रामर के रूल से सोचना पड़ेगा, या जो भी उनके साउंड सिस्टम है, हर लैंग्वेज के अपने यूनिवर्सल साउंड सिस्टम्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं आप? ये बहुत कॉमन वर्ड है। majority कहती है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जब हमें पता ही है कि फास्ट है कि ये फास्ट है, तो फिर हम लोग उसको गलत राइम करेंगे ना, इसलिए हमारा ये मिस्टेक
आगे चले। कंक्रीट का एडजेक्टिव में मीनिंग देखें। particular, specific, single, certain, special, unique, sole, peculiar, individual, separate, isolated. You see, all these words can be used instead of concrete in one way or another depending on the situation as an adjective. ठीक है, यहाँ पे एक language note दिया हुआ है. Make sure to use the right kind of words in sentences. Nouns when a person, place or thing is meant, and adjectives when a description is required. For example, उन्होंने आपको एक example दी हुई है. Everyone in the world wants happy. यहाँ पे क्या mistake है? Happy is an adjective, right? तो यहाँ पर ये होगा तो ये correct होगा. Smoking is not health. Health is a noun. ठीक है? Everyone in the world wants happiness. Smoking is not healthy. ये बात समझ रही है कैसे हम word choices को गलत से लिख लेते हैं, word classes को गलत लिख लेते हैं, तो उसको correct करना लाजमी। जी बेटा आंसर नीचे लिखा हुआ है, देख ले, नहीं समझ आ रहा तो पूछें। Now there are four common problems with word choice that may make it hard for readers to understand your point. सबसे important बात है vague and abstract words. ये कौन से words होते हैं? Vague समझते हैं the word vague? ये लिखा हुआ है VAGUE. What does it mean? Not clear. Vague का मतलब है it's not clear. Abstract जो होते हैं वो ऐसे words हैं जिनके multiple meanings हो सकते हैं लेकिन उस situation में वो befitting नहीं है. ठीक है? Your words need to create a clear picture for your readers. Vague and abstract words are too general. They do not give your readers a clear idea what you mean. Here are some common vague and abstract words. अब आप देखेंगे आप अपनी vocabulary में use करते हैं या नहीं करते हैं these words. Cute, nice, sweet, huge, small, whatever, pretty. ये words commonly हम use करते हैं and they are vague and they are abstract because they could mean a number of things. That's why when you're writing academically or you're writing for a research paper or any other paper that has to do with education and academia, go for pinpointed details. Always give details. If you want to say it's huge, तो huge के साथ वो कितना बड़ा है सेंटीमीटर्स देख लें, मीटर्स देख लें, कोई किस तरह से आप कर सकते हैं. ब्यूटीफुल की बात करनी है तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से. हर आइज आर ब्यूटीफुल. इफ़ आई से शी इज़ ब्यूटीफुल इट्स स्टिल वेग. व्हाट इज़ ब्यूटीफुल? आइदर शी इज़ एंटायरली ब्यूटीफुल और शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट और सोल और माइंड. तो अगर आप उसके साथ लगा दें तो हर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल. ओके, देन डम यूज़ करते हैं. ये वर्ड यूज़ करते हैं आप लोग? किस कब यूज़ करते हैं? Whenever I think of a good friend. ओके, डम का मतलब क्या है? खाली, जिसका दिमाग कम हो. somebody who's stupid, not necessarily stupid, लेकिन sometimes we do dumb stuff we don't want to do but हो जाते करते हैं हम डम हरकतें करते हैं. उस दिन एक स्टूडेंट गुजर रहा था, उसने मुझे देखा, उसने यहाँ से मेरे पास से गुजरना था and he did something dumb. he got scared because उसने कोई क्विज नहीं दिया था, उसे ऐसे और वो वहाँ से भाग गया. अब वो मैंने नोट कर लिया. दैट्स अ डम थिंग टू डू. इट्स ओके, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या हो जाएगा. अब सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया, जो गुजर रहा था सब ने नोटिस किया कि मुझे देख के वो बचा यहाँ से, वो भी राउंड खा के भाग गया वहाँ से. तो दैट्स अ डम थिंग. ही इज़ नॉट अ डम स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट. उसने कहा कि किस तरफ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, नहीं रहना. क्या कह रहे हैं? So these are the words you need to avoid when you are writing academically. ये basic है और भी बहुत है. When you see one of these words or another general word in your writing, replace it with concrete or more specific words. ठीक है? Concrete and specific word. ठीक है? A concrete word names something that can be seen, heard, felt, and tasted or smelled. A specific word names a particular person or quality. Compare these two sentences. An old man crossed the street.
अब हम पाकिस्तान में तो अगर कोई शख्स कमर पकड़ के चल रहा है हम उसको भी ओल्ड कह देते हैं, isn't that so? ठीक है, कोई शख्स अगर मेकअप नहीं लगाता और वो उस तरह से नहीं आता, हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी उम्र का है एंड ऑल दैट, वो भी तो एक वेग बात है ना. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. अगर कंक्रीट एंड स्पेसिफिक करना है तो देखें, एन 87-year-old priest stumbled upon Main Street. अब ये जो है वो इसको स्पेसिफाई करता है. आपके माइंड में एक ओल्ड शख्स कितने साल का होता है? 60+. अब ये स्पेसिफिक करने से हमें पता चल गया है कि काफ़ी ज़ईफ़ है, क्योंकि एक जनरल जो हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि 100 years और 100 ही इंसान जीता है आज के ज़माने में, उससे भी कम हो गया है बाय द वे. सो ये ओल्ड है, ये डेफिनेटली ओल्ड है. द फर्स्ट वर्जन इज़ टू जनरल to be interesting. The second version creates a clear, strong image. Some words are so vague that it is best to avoid them altogether. नीचे देखिए. It is awesome. Break क्या मतलब? ब्रेक मांगे. Come on, you're not even listening and you need a break. मैम वो कह रही है लाइक अच्छा ये देखिए, इट इज़ ऑसम, ये बहुत जेनेरिक है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है. दिस सेंटेंस इज नाइदर कॉन्क्रीट नोर स्पेसिफिक. ठीक है, Awesome, intriguing कह सकते हैं. अब देखें ना, शी इज़ प्रिटी ऑसम. अगेन विद विच परस्पेक्टिव हमें नहीं पता. मे बी शी इज़ ऑसम विद कंप्यूटर्स, मे बी शी इज़ ऑसम विद बिहेवियर, मे बी शी इज़ ऑसम विद पीपल. अब वो स्पेसिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑसमनेस उसमें किस लिहाज से है. दैट इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. अब ये प्रैक्टिस है जो आप करेंगे. इंशाल्लाह. No, right now. We are going to finish this chapter right now. In the following sentences, underline any words that are vague or abstract, then edit each sentence by replacing the vague or abstract words with concrete, specific ones. You may invent any details you like. Now, this is the fun part, कि आप उसमें और details invent कर सकते हैं, कि जो डिटेल यहाँ नहीं दी हुई, you can actually add it up. पहली एग्जाम्पल उन्होंने आपको करके बताई है. आई थिंक इट वुड बी नीड टू बी अ फार्मर. आई थिंक इट वुड बी फैसिनेटिंग टू बी अ फार्मर. अब नीड से तो मेरे माइंड में बहुत कुछ ऐसा होता है कि सफाई सुथराई वाली चीज़ है. यस, तो सेकंड देखिए. नंबर 1, इट वुड बी हार्ड टू ग्रो सम काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. कौन सा वर्ड है इसमें जो वेग है? सी, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इज फाइन, वहाँ हम काइंड्स डाल सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. लेकिन हार्ड इज़ नॉट अ सूटेबल वर्ड ओवर हियर. क्या आ सकता है इसके अलावा? डिफ़िकल्ट. वेरी हार्ड इज़ वेरी कॉमन एंड स्टिल वेग. Challenging is a better word. It would be challenging to grow some kinds of crops in the mid of nowhere. जब मैं वो इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ इन दी मिडल ऑफ नोवेयर, तो वो और स्पेसिफाइड हो जाता है. टेकिंग केयर ऑफ काउज वुड टेक अ लॉट ऑफ वर्क. कौन सा वर्ड है? इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करके इसको एकेडमिक बनाएं. सोचे अगर हम काउस से पहले, आपको पता है आजकल शहरों में भी इट्स कॉमन टू हैव काउस. हैव यू सीन दैट? ये कहीं पे है? आई जस्ट सॉ सम. टेकिंग केयर ऑफ काउस in an urban area is more, or it requires more hard work. ठीक है, वरना अगर जैसे कि कह रहे हैं कि टेकिंग केयर ऑफ डेयरी काउज वुड टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, एंड देन टेकिंग केयर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ काउज इन अ स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेस वुड टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो भी ठीक है. हर्ड ऑफ काउज, वेरी गुड. आप इस तरह के एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप इसे स्पेसिफिक डिटेलिंग देते हैं. अब ये वाला सेंटेंस देखिए. यू वुड हैव टू डू bunches of things for them.
bunches of things क्या होता है? बहुत ज़्यादा। पहले इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करें, ये them कौन हो सकते हैं? Let's say यहाँ पर हम cows को इनके साथ रिलेट कर लेते हैं। Let's say they are talking about cows, तो आप क्या ऐड करोगे? You would have to do bunch of things for the cows, such as feeding them, cleaning them, etc. etc. ठीक है, खाना और साफ करना तो होता है, और क्या करते हैं? ग्रूम, हाँ ग्रूमिंग हो सकती है, यस। चराना जो होता है, यस, व्हाट डू वी कॉल इट? सो बंच ऑफ थिंग्स के साथ आप और डिटेल ऐड करेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, अदरवाइज बंचेस ऑफ थिंग्स में तो मैं तो बहुत कुछ सोच सकती हूँ। ओके, 4 से 9 सेंटेंस, ये आप मुझे लिख के करके बताएं। यू हैव 10 minutes to do it. So slangs are those words which are usually considered vulgar. They call it vulgar language, street language, जो फ्रेंड्स वाली लैंग्वेज होती है, जैसे आप लोग नहीं एक दूसरे को कहते हैं बड़ा बात सुनो, यार सुन। इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, आप अपने घर में लोगों को ऐसा नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी अनलाइकली। और जब बॉयज़ यहाँ मिलते हैं, यहाँ जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैंने देखा है वो तरह तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रीट लैंग्वेज, अदरवाइज दे वॉन्ट बी यूजिंग इट इन देयर हाउसेज और इन द क्लासरूम फॉर दैट मैटर। तो वो स्लैंग्स होते हैं। कैन यू रिकॉल एनी स्लैंग दैट यू यूज़? व्हाट्सएप, go, throw cut, I don't know that. When I was your age, there was this expression, what's crack-a-lackin'? There was a song as well. Yes, of course I am ancient, so I can only give you ancient examples over here, right? तो एक सॉन्ग था, और ये जो elite class schools थे वहाँ पर ये यूज़ होता था, what's crack-a-lackin'? हमारे schools में we didn't know about it. It simply means what is happening. To sound cool, they would use such expressions. ठीक है, अब हम ये नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम कहेंगे ऐसे, क्या कहते हैं, शोल्डर से शोल्डर मारते हैं, व्हाट्सअप, कैसे हो, ऐसे बात करते हैं ना। ये भी स्लैंग का हिस्सा है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड उर्दू या इंग्लिश की बात करें तो फुल सेंटेंसेस आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ये आगे एग्जांपल्स देखें, दी नहीं यहाँ पे। दाग, आई डोंट डिजर्व दिस ग्रेस। See? Do you know what this abbreviation is? It means, so everything is good? So are you feeling good? Everything is going well? नीचे dog लिखे हुए। Of course some of us we don't understand because this is a slang from Western country, ठीक है, जहाँ पर वो प्रोफेसर को बोल रहा है, dog I don't deserve this, जिस फेलो को, लैड को, फेलो फ्रेंड को, जो आपका बहुत ही करीबी और फ्रेंडली हो। इट्स नॉट डॉग, इट्स डॉग, कम ऑन, दिस इज यूज फॉर डॉक्टर, नॉट फॉर द डॉग थिंग। अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे तो वो फिर आप उसको कह लें, वो आपकी चॉइस है, वो भी है, वो जो निसार कह रहे हैं उसका मीनिंग वो भी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो देयर, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ कॉमन, लेकिन वो डॉक्टर को कह रही है, कम ऑन डॉग, आई डोंट डिजर्व दिस ग्रेड और समथिंग, ठीक है। कोई मुझे और स्लैंग बताएं, आप बताएं। ब्लड, ब्लड इज अ स्लैंग, हाउ? ब्लड, ओके। अच्छा, उर्दू में बता
सकते हैं स्लैंग्स? बताएं। आइए उस्ताद जी, ऐसे आपने सुना है ना? मुर्शद, व्हाट? पीरो? पीर से निकला है पीरो? आई एम ओल्ड, आई नीड टू नो थिंग्स। ओके जी, वो ये जो लड़की टिकटॉकर थी बावा जी, जो बहुत फेमस हो गया था जी। ढक्कन, यस। पेंडू, चिलपिल। अच्छा, ये दस्ती करा क्या होता है? मेक मी अंडरस्टैंड। जल्दी करवाना। व्हाट इज चमाड़? Chamard is for the lower classes. I didn't know that. Chamard? Chamad? एक तो होता है चूड़ा। चूड़ा मैंने सुना है। चूड़ा is something dirty. ये racial slang है. Okay, we are not going to use it. ये racist है. Chamard. It's for the बिल्कुल discriminatory है. Do you understand the word discriminatory? It is used because certain people, they look the way they are or they have certain financial status. So ये तो बहुत बुरी बात है. ये काला या कल्लू भी आप कहते हैं जिसका complexion थोड़ा सा black हो. जैसे my own mother, she doesn't like black cats. उनको खाना नहीं देती. जो white होती है, ब्लू आंखों वाली, खुद जाके खाना दे रही होती है. So this is racist. This is animal racism, to be honest. Cat तो cat है ना? Animals के साथ racism क्यों नहीं होता? Will you ever buy a black cat with no fur? I would love to, but mostly white, triple coat, Persian coated, etc. चाहिए और नीचे नहीं चाहिए. Cats तो cats होती है ना, जैसी भी हो. लेकिन हमारे में वो रेसिज्म पाया जाता है. अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यू सी, अब हमें ये क्यों नहीं पता? क्योंकि हम ये यूज़ नहीं करते. अब जैज, एक्साइटेड, हम आउटडेटेड है. बट आई हैव टू शो यू कि किस तरह के होते हैं. To cut off somebody, to corner them. अब हम ये भी तो कहते हैं ना, you are being extra. जब हम ये कहते हैं you are being very extra at the moment, what do we mean by that? ओवर हो रहे हैं. वरना एक्स्ट्रा का मतलब तो होता है ना कि ज़्यादा होना, क्वांटिटी में ज़्यादा होना, लेकिन उसको एज अ स्लैंग भी यूज़ किया जाता है. यस, ओके. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्डी लैंग्वेज. व्हाट डज इट मीन बाय वर्डी लैंग्वेज? वर्डी लैंग्वेज का क्या मतलब होगा? जिसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हों. यू आर यूजिंग मोर वर्ड्स देन दे आर रिक्वायर्ड टू बी. फॉर एग्जाम्पल, पीपल समटाइम्स यूज टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज. दे मे थिंक दैट using more words will make them sound smart, but too many words can weaken a writer's point. For example, they have given one example: I am not interested at this point in time. Right? When we edit it, we can simply say I am not interested now. For example, अगर क्लास में कोई बच्चा असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाता, 2 weeks later he or she comes to me and tell me that I want to submit the assignment, तो मैं अगर ये कहना शुरू कर दूँ that you should have submitted at the right time because now it's too late and I'm not going to take it, you are so irresponsible, blah blah blah, that's too wordy. There's no need. All I can say, all I should say, I cannot accept it now, time has passed. As simple as possible. फिर एक और एग्जाम्पल दीजिए आगे, ये देखिए. In the opinion of this writer, I think the directions are clear. The phrase in the opinion of this writer is not necessary over here. Instead of this, you can simply write
the text says, the text suggests, और आप सीधा सीधा उसकी बात कर सकते हैं. The suspect was evasive and avoided answering the question. ठीक है, इसको edit अगर आप करें, the suspect was evasive. जब आप evasive की बात करें, evasive का मतलब पता है आपको? Evasive मतलब कि वो resist, उनमें reluctance थी, some kind of resistance थी to answer all those questions. वो इधर की उधर की बातें करना start हो गए थे. ठीक है, तो अब अगर आप इसको ये कह लें तो that's more than enough. The wordy language should be avoided. These are common wordy expressions that we use on daily basis and in our write-ups, such as a result of, due to the fact that, in spite of the fact that, it is my opinion that, in the event that, the fact of the matter is that, etc. and etc. Instead of these expressions you can use these ones. For example, as a result of की जगह आप because use कर सकते हैं, a great number of की जगह आप many use कर सकते हैं, at that time की जगह आप then use कर सकते हैं. You can make your write-up more clear by using these less wordier expressions. ठीक है, इसमें भी यही एग्जांपल्स दी हुई हैं. चले एक सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड. द एग्जांपल देखें. शुगर सब्स्टिट्यूट्स आर अ पॉपुलर डाइट चॉइस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस व्हेन दे आर searching for ways to cut down on all of the calories they ingest on a daily basis. Now how do they make it better? They are cutting all those wordier expressions into one word or two. For example, they make it better this way. Sugar substitutes are a popular diet choice for people when they are searching for ways to reduce the calories they ingest each day. ठीक है, पीपल में ऑटोमेटिकली ऑल एजेस आ जाते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी और मिडिल एजेस में. तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर राइटअप लेस वर्डियर. यहाँ तक बात समझ आई कि वर्डियर लैंग्वेज को कैसे अवॉइड करना है. देन वी हैव क्लीशेज. डू यू नो व्हाट आर क्लीशेज? Cliches are phrases used so often that people no longer pay attention to them. To get your point across and to get your reader's attention, replace cliches with fresh language. For example, Nisar keeps telling me that all these expressions or slangs, they are very outdated because the exposure that he had or he has is a little different. He maybe is interacting with people who know the latest versions of the slangs and everything, and वो outdate हो चुके हैं. जो यहाँ पर लिखे हैं according to him they are outdated और अब कोई use नहीं करता. They have become cliches. Slangs ही हैं जो cliches बन जाते हैं. और common language जो standard language होती है उसमें भी हमारे पास cliches होते हैं. For example, I cannot make ends meet. Now it was very famous when I was your age, a little younger. ये expression use होता था. एक और expression होता था, it is raining cats and dogs. Yes. Now it has become a cliche. अब वो कहते हैं इसे use करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें क्लास में पढ़ाया जाता था that I need to use this expression for heavy rain. Similarly, my uncle worked his way up the corporate ladder. My uncle started as a shipping clerk but ended up as a regional vice president. So it's not vague, it's not abstract, और वो clear cut करके edited way में आप इस तरह से लिख सकते हैं. This role is as hard as a rock. This role is so hard I could bounce it. ठीक है, तो आपने clarity के साथ लिखना है और इस तरह के cliches को avoid करना है अपने writer. Now these are some common cliches. Do you use any one of those? For example, break the ice. You must have heard this one. 24/7. This is very common among youngsters. Do you know what does it mean? 24/7 का मतलब होता है always, हर वक्त, continuously, 7 days a week, 24 hours a day and all that. Work like a dog. वो हम उर्दू में नहीं कहते कि मैं कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रही है एक्सेट्रा, कहते हैं हम. तो ये आउटडेटेड हो चुके हैं. दीज आर क्लीशेज. नहीं बेटा, ये idioms नहीं है, ये ऐसे expressions हैं which are no longer appreciated or appropriate to use, such as long as. No way on earth I am going to give you extra marks for it, right? Which one? Spoiled brat. Spoiled brat. Spoiled brat होते हैं जो हम ये यूज़ करते हैं. People still use this terminology. Who can explain what does it mean by spoiled brat?
बिगड़ी हुई औलाद, पैसे वाली औलाद, जो हम नहीं वो फिल्मों में देखते हैं वडेरे की औलाद एंड ऑल दैट, दे आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स. बस काफी मिक्सअप हो जाएगी. Don't make us look like a dog, please. ऑल राइट, देखिए 110% ये हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ क्लीशे एंड वी शुड अवॉइड दिस क्लीशेस. That would be more than enough. बस ये एग्जाम्पल एंड देन वी आर डन. Riding a bicycle 100 miles a day can be hell on earth unless you are willing to give 110%. So they are cutting off all the cliches in the sentence and they say riding a bicycle 100 miles a day can excruciating unless you are willing to work extremely hard. So they are making it very pinpointed, specific, and they are taking out all the cliches, and that is what you're supposed to do as well. So we talked about few things today which are going to be part of your quiz that is going to be on 10th of May. A final note, language that favors one gender over another or that asserts that only one gender performs certain roles is called sexist. Sexist language हम बहुत use करते हैं. Sexism बहुत common है, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में, जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ आवर जेंडर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि अ मैन इज़ सपोज टू विन द ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीवन इन द हाउस, और सालों साल उसने बहनों के जहेज़ भी बनाने हैं, अम्मी अब्बू को भी रखना है, बीवी भी रखने हैं, बच्चे भी रखने हैं. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. अ सिंगल मैन कैन नॉट एक्चुअली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग लाइक दैट. दैट्स very burdenizing. Similarly, we expect our women to just do the household chores. मैं ये नहीं कह रही नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो लेना चाहें तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए. यस, तो ये जो होते हैं हम रोल जो है उसकी बेसिस पे लैंग्वेज भी डिवाइस करते हैं. हम कभी नहीं कहते कि दैट मैन इज़ एन इमोशनल मैन. हम अगर एक आदमी को इमोशनल कहते हैं तो वो जो आदमी है ही फील्स बैड कि मैं तो इमोशनल नहीं हूँ. आपको ये बताया जाता होगा कि रोना नहीं है एंड ऑल दैट, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो एंड ऑल दैट, ऐसी चीज़ें कहा जाती हैं. ये सब सेक्सिस्ट हैं. नाउ लुक एट दिस, अ डॉक्टर should politely answer his patient's questions. Not all doctors are male as suggested by the pronoun his. ये pronoun का बड़ा मसला चल रहा है आजकल. Instagram यूज़ करते हैं आप? Yes. अब there is another place where you can actually write your pronouns. आप ही हैं या she हैं या दोनों से identify नहीं करते. It's your choice. पहले ऐसा नहीं था. पहले आप define करते थे male female rather not to say. अब आप अपने pronouns भी दे सकते हैं. जैसे पहले ये होता था चेयरमैन होता था, स्पोर्ट्समैन होता था. अब कहते हैं कि चेयरपर्सन कहना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन कहना चाहिए. बैट्समैन होता था और अब उसको बैटर कहते हैं. बैटर मैंने नहीं किया, बट दे वुड चेंज इट. करेंगे, वो करेंगे. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि सिर्फ आदमी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज उसमें ख़वातीन भी होती हैं एंड ऑल दैट. अ डॉक्टर शुड पोलाइटली आंसर हिज और हर पेशेंट्स. अब हिज और हर पे भी एक नई जदीद टेक्निक उन्होंने लगाई है कि इसकी जगह आप, ठीक है, और ये इस पे एक मीम भी है जो उस दिन मैं देखी एंड आई लाफ्ड अ लॉट. इफ़ आई फाइंड वन तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि उसमें वो यही कहता है कि मैंने ये सारी ज़िंदगी लगा के हिज और हर समझा और एंड में उन्होंने इसको देयर कर दिया. तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. इंग्लिश इज़ समटाइम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज द रूल्स दे डू नॉट मेक सेंस. तो यहाँ तक आपको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछें. सब समझ आ गई है? राइट.